Hello, my dear student. This is Ranjan Ganguly, your English teacher. After the synopsis or the theme, now we are moving our explanation. Now we will count up to 12 and we will all keep still. Then what is the plea or appeal of the poet? Poet का appeal क्या है? He wants to count up to 12. What is the symbol of counting 12? First question. Counting 12 is symbolic. It symbols 12 months in a year, 12 hours. Means poet wants a complete silence during this period. Okay, poet, that's why counting 12. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. For the face of the on the face of the earth refers to for once, for a while. For once मतलब for a while, for the time being, on the face of the earth, for the welfare of the earth, धरती की भलाई के लिए. Let's not speak in any language. Let's not speak in any language मतलब do not create discrimination by too much noise. Do not create discrimination by too much नॉइज़. बहुत ज़्यादा शोर शराबा करके या लैंग्वेज बोल के इस धरती में, ठीक है ना, शोरगुल मचा के धरती की शांति को ना ख़त्म कीजिए. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. कुछ देर के लिए रुक भी जाइए. इट्स एन अपील ऑफ द पोएट. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. ही ऑल्सो फॉरबिड्स टू move the arms so much. Arms is a pun, P-U-N, poetic device. Means dual meaning of one word. Arms refers to weapon, W-E-A-P-O-N, and hands also, okay, H-A-N-D-S. That's why it's a pun. The poet forbids everyone not to move their arms for killing other and for fighting with others. It would be an exotic moment. Exotic moment means unusual moment, unexpected moment. What would be an exotic moment? Without rush, without engine. When there will be no rush, people will not rushing for their material gain. People will not be rushing for their existence of survival. जब लोग भाग दौड़ नहीं करेंगे, okay, without any engines, there would be no sound of and smoke coming out from the factories. जब फैक्ट्री से स्मोक और इंजन की शब्द नहीं आएंगे, जब लोग भाग दौड़ नहीं करेंगे, that would be an exotic moment. Answer of the question you have got. What would be an exotic moment? When there will be no rush and there will be no sound of machinery from the factory. That would be an exotic moment. We would be all together in a sudden strangeness, alliteration. Okay, sudden strangeness, alliteration. Let's देखो लाइन जब सेम वर्ड से शुरू हो, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा. ANAPHORA. बहुत अच्छी पोएटिक डिवाइस है इस पोएम में. एनाफोरा मीन्स व्हेन द टू लाइन्स आर स्टार्टेड विद द सेम वर्ड. Let's not speak, let's stop. Okay, that is called anaphora. Then obviously what we have got? Alliteration, sudden strangeness. What would be sudden strangeness? Next question. When there would be all people getting together. जब सब लोग एक साथ होंगे, all people will be united, that would be in a sudden strangeness. वही होगा एक strange मतलब आश्चर्यजनक वातावरण. ठीक है. Fishermen in cold sea would not harm whales. That is also a kind of symbol. सिंबल किस चीज़ का? फिशरमैन इज द सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटर कम्युनिटी, जो दूसरे को शोषण कर रहे हैं, शासक श्रेणी, एक्सप्लॉयटर कम्युनिटी. एंड वेल्स मछली, इट्स अ सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटी. पोइट ये कहना चाहते हैं, व्हेन नो वन मीन्स नो ह्यूमन बीइंग विल एक्सप्लॉयट द अदर ह्यूमन बीइंग, or no human being will exploit the other creatures. दो explanation दोगे. When no human being will be exploiting other human being, or no human being will exploiting other creatures, that would be a great moment. And the man gathering salt, it's a profession. Different profession poet has said in this poem. One of them is salt gathering. The man gathering salt means the man who is picking up salt, जो नमक इकट्ठा कर रहा है as a profession, would look at his hard hand. उसे भी कुछ समय अपने हाथों को देना होगा. जो हाथ नमक इकट्ठा करते करते बिल्कुल घायल हो चुके हैं नमक के जो सॉल्टी इफेक्ट से, उस हाथ को भी उसे एक बार देखना होगा. इससे क्या बताना चाहते हैं पोइट, बताओ तो. ही वांट्स टू डिनोट दिस इंसिडेंट टू ऑल पीपल. सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि फ्रॉम देयर बिजी लाइफ दे शुड टेक अ पॉज. कुछ देर अपने लिए भी टाइम निकाल ले, अपने इंजर्ड हेल्थ को भी देख ले, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जीते रहे. खाली भाग दौड़ कर रहे हैं, देखो खाली रश कर रहे हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए सबको. ओके, पोएट वांट्स टू से दिस इन दिस लाइन. नाउ व्हाट ही सेड, those who prepare green words
जो लोग ग्रीन वर्ड्स बना रहे हैं, ग्रीन वर्ड्स रेफर्स टू वॉर अगेंस्ट नेचर। बोले सर नेचर के अगेंस्ट में कैसे होता है? डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट काट देना, ठीक है। एडवांसिंग डेजर्ट, डेजर्ट को बढ़ाते चलना, ओके। कटिंग द ट्रीज एंड पोचिंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की तस्करी करना, दिस इज़ जो लकड़ी काट के दूसरी जगह पे बेच देना महंगे महंगे चीज़ों की, दैट इज़ कॉल्ड नेचर के खिलाफ लड़ाई, ओके ना। वॉर अगेंस्ट ग्रीन वर्ड्स, वर्ड्स विथ गैस, वर्ड्स विथ फायर्स। खाली वही लोग नहीं जो नेचर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पोइट उन लोगों को भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वर्ड्स विथ गैस, वर्ड्स विथ गैस रेफर्स टू न्यूक्लियर वॉर, NUCLEAR, nuclear war, and words with fire refers to words with ammunition, AMUNITION। अस्त्र शस्त्र के साथ जो लोग लड़ाई कर रहे हैं या जो लोग न्यूक्लियर वॉर जैसा खतरनाक लड़ाई लड़ रहे हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, इसका मतलब समझ लो। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स मतलब व्हाट यू आर गेटिंग इन दिस वॉर, आर यू रियली गेटिंग टेस्ट ऑफ विक्ट्री? क्या आप विक्ट्री का स्वाद चख पा रहे हैं? नहीं चख पा रहे हैं। बिकॉज whom you have killed in these deadly wars, इन खतरनाक लड़ाइयों में जिनको आपने मारा है, they are also your brothers, वो भी आपके भाई बहन ही हैं, आपके कास्ट के ही हैं, ठीक है, आपके कास्ट के हैं, आपकी कम्युनिटी के भी हो सकते हैं। देन why you have killed them, poet wants to know, okay। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, एक काम करिए, क्लीन योर मेंटेलिटी, अपने मेंटेलिटी को साफ कीजिए, एंड जस्ट क्लीन योर क्लोथ दैट इज़ फिल्ड विद ब्लड, जो खूनी हाथ आपके हैं, जो खूनी कपड़े आपके हैं, उन्हें चेंज करके साफ सुथरा कपड़ा पहनिए और अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए। क्लीन क्लोथ्स, अगेन यू हैव गॉट, ओके, एलिट्रेशन, ग्रीन वर्ड्स मेटाफर, वर्ड्स विद गैस मेटाफर, वर्ड्स विद फायर मेटाफर, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स मतलब कंसिडर ऑल द पीपल ऑफ अदर कंट्री एज योर ब्रदर, दूसरे देश के लोगों को भी जिनको आपने दुश्मन बना रखा है, जिनको आप किल करते हैं, जिनके ऊपर एटम बॉम्ब फेंक देते हैं, उनको भी अपना भाई समझिए, ओके। एंड थिंक अबाउट दोज पीपल ऑफ अदर कंट्री एज योर ओन ब्रदर। इन द शेड, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग मतलब डू नॉट क्रिएट एनी वॉर अगेंस्ट, दोबारा कोई लड़ाई मत पैदा कीजिए। डूइंग नथिंग मतलब डोंट क्रिएट एनी वॉर एंड ऑलवेज मेंटेन पीस, शांति रखिए, तभी जाके इस दुनिया में सुकून मिलेगा। तो इन दिस फर्स्ट वर्ड वी हैव फिनिश्ड अप टू दिस मच।